Hello, this is the biology class. Today we will discuss about chapter number 2, biological molecules. First of all, we have to take a look on introduction of biochemistry. Like it is the branch of biology that deals with the study of chemical components and chemical processes in the living organisms. So, a basic knowledge of biochemistry is essential for understanding anatomy and physiology because all of this structure of organisms have biochemical organizations. For example, photosynthesis, respiration, digestion, muscle contraction can all be described in biochemical terms. So there are basically two types of biochemical compounds. First one is organic and the second one is inorganic. So carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid is considered in organic compounds, and inorganic compounds there is water, carbon dioxide, acid, bases and salts. So chemical composition, if we take a look on chemical composition of bacterial and mammalian cell, we will see like there is water. 70% water is present in bacterial cell, and 70% water also present in mammalian cell. Proteins 15% and 18% in mammalian cell. Carbohydrate is only 3% in bacterial cell and 4% in mammalian cell. Lipids are 2% and in mammalian cell lipids are just 3%. DNA is 1% and in mammalian cell DNA is 0.25%. So if we talk about RNA, is only 6% in bacterial cell and 1.1% in mammalian cell. Other organic molecules like enzymes, hormones, metabolites, these are present in 2% or 2% also in mammalian cell. So if we talk about inorganic ions like sodium, potassium, calcium, magnesium, chloride ion and sulfate ion, for example, these are present only 1% in concentration in bacterial cell and only 1% concentration for mammalian cell. Basically, survival of organism depends upon the ability to take some chemicals from the environment and use them to take the chemicals of its living matter. So there is a process like metabolism. If we describe this metabolism, all the chemical reactions taking place in an animal cell is called metabolism. For example, respiration process, digestion process, these are all called metabolism processes. ये है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जिसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन. तो अब हम इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं किस तरह बनते हैं. सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमारे पास कार्बन इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कार्बन इज बेसिक component of organic compounds. यानी कि ये बात है कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन बेसिक कंपोनेंट है. उस हर एक में कार्बन जो है वो कंपलसरी है. इसके बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंप्लीट नहीं होते. हाँ, हाइड्रोजन बदल सकती है, साथ जुड़े हुए बाकी एलिमेंट्स बदल सकते हैं. वो उनकी हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन लग सकती है, नाइट्रोजन लग सकती है एंड फास्फोरस लग सकती है, लेकिन कार्बन जो है वो मस्ट है. ठीक है. जो सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है. कार्बन इज टेट्रावेलेंट. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है टेट्रावेलेंट, जिसका मतलब ये है कि एबिलिटी टू मेक 4 बॉन्ड्स. 4 बॉन्ड्स एक ही एलिमेंट के साथ
और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ भी बन सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कार्बन पे या उस कंपाउंड पे जो कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसकी जी, कोवेलेंट बॉन्ड्स, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे देखें कार्बन जो है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उसकी जो है फॉर्मिंग जो है दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड के तौर पे जानी जाती है। जब वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ व्हेन कार्बन एटम forms 4 bonds with different atoms or radicals, four bonds are formed their symmetry is structural. For example, there are 3 types of symmetry in tetrahedron, just like unbranched structure, the second one is branched structure, and ringed structures। जी, यहाँ पे वो इस प्रॉपर्टी में हमें बता रहे हैं जब कार्बन जो एटम है वो 4 बॉन्ड बनाता है, उनकी सिमेट्री जो है, जो उनकी शेप है वो में भी 3 टाइप्स हो सकती हैं। पहली वो जो बता रहा है वो अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर बता रहा है। ठीक है, सेकंड वन इज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन इज रिंग्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक ये बात होगी कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं कार्बन जो है कॉमनली किन किन के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन कॉमनली मेक्स बॉन्ड विद हाइड्रोजन, जो पहला कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है ऑक्सीजन, थर्ड वन इज फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, मे बी समटाइम्स सल्फर। सो इन सब एलिमेंट्स के साथ कम्बिनेशन जो है वो मिलके बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है, एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज़ potential energy, very potential energy, when it breaks large amount of energy is released। जी, तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज देख ली हमने। अब आगे एक और प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। जी, 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल कार्बन बनाती है, कुछ है जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। जी, तो जो सेकंड वन है वो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, या जिसको हम कहते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मैक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि सेलुलोज है, उसके बाद आ जाते हैं सेलुलोज के बाद आता है हमारे पास फैट और
इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं प्रोटीन्स। ये सारे क्या हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं इनकी। अब स्मॉलर मॉलिक्यूल की तरफ आए, जैसे कि हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फैटी एसिड्स एंड जैसे कि अमाइनो एसिड, ये छोटे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने देखा इन सब के अंदर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मौजूद होता है। जैसे ही ये टूटता है मेटाबॉलिज्म के दौरान, इसको तोड़ा जाता है, तो इसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी की फॉर्म में जो है हमें एनर्जी मिलती है, जो कि कहाँ पर यूज़ होती है, वो सेल एक्टिविटीज़ में, मेटाबॉलिज्म में ये वाली एनर्जी यूज़ की जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो स्ट्रक्चर हमने देखे हैं वो किस किस तरह के होते हैं कार्बन के। एक हमने स्ट्रक्चर देखा है जो कि है अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है वो है अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर जी। तो इसको मतलब यही है कि ऐसा स्ट्रक्चर कार्बन का जिसमें ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब हमने इसको मज़ीद कैसे डिफ़ाइन करना है। कार्बन जो है वो एक लाइन के अंदर ही, आपस में लाइन के अंदर ही बॉन्ड बनाया हुआ है, उनका कोई ब्रांच नहीं निकली हुई। फॉर एग्जांपल इधर से कोई ब्रांच नहीं निकली हुई, कोई इधर से ब्रांच नहीं निकली हुई कार्बन एटम की, वो जस्ट सीधी लाइन में कार्बन जो हैं वो मौजूद हैं। तो अब यहाँ पे वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। आपको पता है कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है, इसके 4 बॉन्ड बनाना ज़रूरी है तभी ये स्टेबल होता है। तो अब इसके साथ 3 बॉन्ड मज़ीद बनेंगे, ठीक है। इसके साथ 2 बनेंगे, इसके साथ भी 2 और इसके साथ फिर से 3। अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगी है या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये डिफरेंट और वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, कंपाउंड्स जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त। लेकिन अभी हमने यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन के साथ इसको डिस्कस करना है। ये हाइड्रोजन्स लगी हुई, ठीक है, ये इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर रही हैं जी। ये मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया, इसमें कोई ब्रांच नहीं, दैट्स वाई ये अनब्रांच स्ट्रक्चर कहलाता है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन एटम्स की तादाद जो है यहाँ पे 4 कार्बन हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर कुछ कंपाउंड्स हैं वहाँ पर 5 कार्बन होंगे, ठीक है। कुछ होंगे जहाँ पर 6 कार्बन, 7 कार्बन वाला कंपाउंड भी है, यहाँ तक कि 22 और इससे भी ज़्यादा ऑनवर्ड जो हैं वो कंपाउंड्स हैं मौजूद। लेकिन समझाने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप यही चीज़ याद रखें कि अनब्रांच्ड में कार्बन जो हैं उनमें ब्रांचेस नहीं होती, वो सिर्फ एक सीधी लाइन में ही आपस में बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, जिसमें ब्रांचेस हैं। अब यहाँ पर हम ब्रांच स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम कार्बन एटम्स ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पर 3 कार्बन ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन ये मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल 5 कार्बन्स का है। ये मॉलिक्यूल के अंदर 5 कार्बन्स हैं, तो बाकी की जो 2 हैं वो इधर से एक ब्रांच इधर से लगी हुई होगी और एक इस साइड से ब्रांच की फॉर्म में उसने इस एटम के साथ बॉन्ड बनाया होगा। अब नेक्स्ट ये देखें, इस कार्बन की तो वैलेंसी हो गई पूरी, इस कार्बन की, ठीक है। 1 2 3 4 बॉन्ड्स बन गए। अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, तो यहाँ पर उसने 3 हाइड्रोजन्स के साथ जो है वो बॉन्ड बना लिया। सेम एज 3 हाइड्रोजन्स एंड 3 हाइड्रोजन्स। ओके जी, ये हो गया ब्रांच स्ट्रक्चर। यानी यहाँ पर जैसे आपको पता है एक ट्री है, फॉर एग्जांपल ये ट्री है, तो यहाँ से इसके जो ब्रांचेस हैं वो निकलना स्टार्ट होती हैं, वो आगे से फर्दर बढ़ती चली जाती हैं। तो यही एक एग्जांपल मैं समझा सकती हूँ, ज़्यादा इससे आसान और कोई चीज़ नहीं है समझने के लिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ब्रांचेस मीन्स कार्बन जो हैं वो ब्रांचेस के फॉर्म में लगे होते हैं। जो लास्ट वन है वो है हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। वो भी देख लेते हैं। बहुत सारी आगे जाके अब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे हायर लेवल में, तो आपको बहुत सारे ऐसे कंपाउंड से, मॉलिक्यूल से वास्ता पड़ेगा जो कि रिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है।
ठीक जी, रिंग से आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कोई रिंग टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें जो है वो सर्कल या रिंग बनी हुई है। ठीक है, अब कार्बन का रिंग है तो इट मीन्स अगर मैं कहती हूँ कि 6 कार्बन्स हैं, ठीक है, तो हमने उनको रिंग की फॉर्म में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं उसको 1 2 3 4 5 6 कार्बन जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाती है बारी इनकी वैलेंसी पूरी करने की। अब अगर मैं फार्मूला देती हूँ C6H6 का, ठीक है, यानी कार्बन भी 6 हैं और हाइड्रोजन भी जो हैं वो भी 6 हैं, तो हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगी हुई है। यहाँ से आपने फार्मूला जो है वो ड्रॉ कर लेना है। इस कार्बन के साथ भी एक ही हाइड्रोजन है। अब वैलेंसी की बात देख लें कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स हैं, इट मीन्स के इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है। वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी कार्बन की 4 है। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, इस कार्बन के साथ इसी कार्बन का डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना देना है। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तभी जाके ये जो कार्बन है ये स्टेबल होगी। इसी तरह चले आए नेक्स्ट कार्बन की तरफ, इसकी तरफ तो ये 1 2 3 4 यानी इसका भी 4 जो बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ये भी स्टेबल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट कार्बन है, इसका बॉन्ड अब किसके साथ बनेगा, ये फर्दर नेक्स्ट वाली के साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी। इसी तरह ये जो कार्बन हैं इन दोनों ने आपस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। इसी तरह हर कार्बन का दूसरी कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये हो गए रिंग स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर ये टॉपिक होता है कंप्लीट। ठीक है, आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए यही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में फ्रेंडली होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बिला झिझक मुझे बोल सकते हैं, ताकि मैं आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक उस टॉपिक पे सबसे पहले वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।